السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم، یہاں غلطی سے 10ویں جماعت لکھا گیا ہے، لیکن 9ویں جماعت کا سبق نمبر 3 انٹرنیشنل ڈیٹ لائن حصہ 2 یعنی بین الاقوامی خط تاریخ کا یہ آج دوسرا حصہ ہے۔ اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بین الاقوامی خط تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کی جو بنیادی اصول ہیں، یعنی طول البلد پر کس طرح سے وقت بدلتا رہتا ہے، اس بدلتے ہوئے وقت کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلا ویڈیو دیکھا تھا کہ ایک طول البلد سے دوسرے طول البلد تک جانے کے لیے 4 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے، یعنی سورج کے سامنے جب ایک طول البلد آتا ہے، ایک سے دوسرے طول البلد آنے کے لیے 4 منٹ کا وقفہ لگتا ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم نے دو خیالی راحل اور راہن کے دو خیالی سفر جو ہے طے کیے تھے، اس کی مدد سے ہم نے سمجھا تھا۔ تو آئیے ہم بین الاقوامی خط تاریخ کو سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی خط تاریخ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پورے گلوب کو عرض و بلد کے حساب سے 2 نصف کروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ شمالی نصف کرہ خط استوا کے شمال میں، اس کے جنوب میں جنوبی نصف کرہ۔ اسی طرح سے پرائم میریڈین ہے، یہ 0 درجے کا عرض البلد ہے جس کو پرائم میریڈین کہتے ہیں، اور اسی کو جی ایم ٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے مشرق کا جو حصہ ہے یہ مشرقی نصف کرہ، اور اس کے مغرب کا حصہ یہ مغربی نصف کرہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو 0 ڈگری کا پرائم میریڈین ہے، یعنی یہ خط 0 ڈگری کا پرائم میریڈین ہے، اس کے جسٹ پیچھے یعنی اس حصے پر، اس کے جسٹ پیچھے والے حصے پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر 180 درجے کا طول البلد موجود ہے، یعنی یہ طول البلد 180 درجے کا ہے، اور اسی 180 درجے طول البلد پر یہ آپ ٹیڑھا میڑھا خط دیکھ رہے ہیں، جو ٹیڑھا میڑھا خط گزر رہا ہے، اسی کو ہم بین الاقوامی خط تاریخ یا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اس کے پہلے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کے متعلق کچھ معلومات آپ یوں سمجھ لیے۔ 1884 میں یہاں غلطی سے 1984 لکھا ہوا ہے، یہ 1984 نہیں ہے بلکہ یہ 1884 ہے۔ 1884 میں میریڈین کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک نے لندن کے قریب گرینچ کے مقام سے گزرنے والے 0 درجہ کے طول البلد کو دنیا کا معیاری وقت تسلیم کیا تھا، یعنی 0 ڈگری طول البلد کو پوری دنیا کا جی ایم ٹی یعنی گرینوچ مین ٹائم تسلیم کیا، جس کو ہم جی ایم ٹی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا معیاری وقت ہے۔ یہاں سے ہم جیسے جیسے مشرق یا مغرب میں جائیں گے، وقت میں اضافہ یا کمی ہوتی جائے گی۔ یہ 0 ڈگری کا جی ایم ٹی ہے، اس کے مشرق میں ہر طول البلد پر 4 منٹ کا اضافہ، اور اس کے مغرب میں ہر طول البلد پر 4 منٹ کی کمی ہوگی۔ اس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ سمجھا تھا کہ 2 راہن اور راحل، یہ دونوں لوگ جو سفر کرتے ہیں، ایک کا سفر اپنے گھڑی کے الٹی سمت کے مطابق تھا، ایک کا سفر گھڑی کے جو ہے سوئی کے مطابق تھا۔ تو دونوں کے لیے ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح سے وقت بدل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو 0 ڈگری کا پرائم میریڈین ہے، 0 درجے کا خط ہے، جسٹ اس گلوب کے پیچھے والے حصے میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پیچھے 180 درجے کا طول البلد ہے۔ اسی 180 درجے طول البلد کو جو جی ایم ٹی کے بالکل پیچھے ہے، اسے بین الاقوامی خط تاریخ یا انٹرنیشنل ڈیٹ لائن جو ہے تسلیم کیا گیا۔ دراصل 1984 میں جب 0 درجہ طول البلد کو معیاری وقت یا جی ایم ٹی تسلیم کیا گیا، معاف کیجیے گا 1884 میں، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے 1984،
रॉयल ऑब्जर्वेटरी की निगरानी में ये काम हुआ था 1884 में। चूँकि बरतानिया का उस वक्त पूरी दुनिया पर तसल्लुत था, यानी बरतानिया की हुकूमत थी और दुनिया का सुपर पावर था उस वक्त, तो उसे तय किया गया था जो ज़मीन के दरमियान में और जस्ट उसके पीछे का जो हिस्सा है उसे बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ तस्वुर करते हैं। बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ को में कौन कौन सी एहतियात बरती गई है, बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया है। बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ का ज़्यादातर हिस्सा 180 दर्जा तुलुल बलद से गुज़रता है, यानी आप यूँ समझिए कि जो 180 दर्जे का ये तुलुल बलद है, यहाँ से बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ का ज़्यादातर हिस्सा गुज़रता है। लेकिन कहीं कहीं इस हिस्से को जो टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए किया गया है कि जहाँ कहीं से ये ज़मीनी हिस्सा है मिलता है वहाँ से उसको टेढ़ा कर दिया गया है। यानी ये हिस्सा, ये हमारा साइबेरिया का इलाका है, ये अलास्का का हिस्सा है और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जज़ायर हैं। देखिए इस हिस्से को, ज़मीनी हिस्से को बचाने के लिए यहाँ समंदर से गुजारा गया, जबकि 180 दर्जे का ख़त यहाँ से गुजर रहा है। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन सीधा ना हो करके इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। यानी इस ख़त के बीच में जहाँ कहीं भी ज़मीन का हिस्सा आता है वहाँ हमने इस ख़त को टेढ़ा कर दिया, यहाँ टेढ़ा कर दिया है। फिर आकर के यहाँ बहुत सारे जज़ायर हैं, यहाँ पर टेढ़ा कर दिया है। तो इसको खुश्की से नहीं गुजारा गया बल्कि मुकम्मल तौर पर ज़मीनी हिस्से से गुजारा गया। लेकिन इसकी इस ख़त की इब्तदा और इसका आखिरी हिस्सा 180 दर्जे पर ही है, दरमियान में भी 180 दर्जे पर है, यानी ज़्यादातर हिस्सा 180 दर्जे पर बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ है। लेकिन जहाँ कहीं से ज़मीनी हिस्सा गुज़रा है वहाँ हमने इसको तब्दील कर दिया है, यानी मोड़ दिया है दाएं या बाएं ज़मीनी हिस्से को से ना गुजारने के लिए, यानी मुकम्मल तौर से ये जो है पैसिफिक ओशन या बहरुल काहिल से गुजरता है। अजीज़ तलबा, इस तरह से इन बातों का ख्याल रखा गया है बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ को तय करते वक्त कि मुकम्मल तौर से इसे समंदर से गुजारा गया है, यानी बहरुल काहिल से। इस ख़त को खुश्की से नहीं गुजारा गया, रास्ते में आने वाले जज़ायर के दाएं या बाएं तरफ से मोड़ दिया गया। इसलिए यह ख़त 180 दर्जा तूलुल बलद की तरह सीधा नहीं है बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज़मीनी हिस्से पर दिन और तारीख़ की उलझन ना हो, इसलिए यह ख़त मुकम्मल तौर पर बहरुल काहिल से गुजारा गया है। यानी आप वापस इसको आप समझिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इस ख़त को सीधा यहाँ से गुजारा जाता तो यहाँ इस हिस्से में जो ज़मीनी हिस्सा नज़र आ रहा है, इस हिस्से में रहने वाले लोगों के लिए दिन और तारीख़ की उलझन होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यह बैनुल-अक़वामी ख़त है। ये बैनुल-अक़वामी ख़त से मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जाने पर एक तारीख़ और एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर एक फ़र्द यहाँ से सफ़र करता है और सफ़र करते करते इस हिस्से में पहुँचता है तो यहाँ से मग़रिब की तरफ आने पर उसको एक दिन और एक तारीख़ में इस ख़त को पार करने के बाद इजाफ़ा हो जाता है। और इसी तरह मग़रिब से मशरिक़ की तरफ अगर कोई फ़र्द आता है तो उसमें कमी हो जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर ये ख़त किसी ज़मीनी हिस्से से अगर गुज़रता तो यहाँ रहने वाले जो इंसान हैं, ये ख़त है, ये तो मुकम्मल तौर से फ़र्ज़ी ख़ुतूत हैं जो ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आते। उस ख़त को हम लाशऊरी में पार भी कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमने बैनुल-अक़वामी ख़त को कब पार कर लिया और कब दिन और तारीख़ बदल गई। तो इस तरह से बड़ी उलझन होती ज़मीनी हिस्से पर। यही वजह है कि इसी दिन और तारीख़ की उलझन से बचने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर समंदर से गुजारा गया है, जहाँ पर इंसानी बस्तियाँ वजूद में नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जज़ायर हैं। इन जज़ायर पर दिन और तारीख़ के उलझन से बचने के लिए इसको मोड़ दिया गया है दाईं जानिब। इसी तरह यहाँ पर बाईं जानिब मोड़ दिया गया है, यहाँ पर मोड़ दिया गया है। यह अलास्का और
साइबेरिया के बीच के हिस्से से गुजारा गया है, यानी बहरुल काहिल से गुजारा गया है। तो अजीज़ तलबा, इस तरह बैनुल क़ौमी ख़त तारीख़ में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई, कई मरतबा ये तब्दीलियाँ की गई थी। आखिरी तब्दीली 2011 में की गई है, यानी इस तरह से 180 दर्जे का बैनुल क़ौमी ख़त तारीख़ 0 डिग्री की तुलबल के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। तो इस बात का ख्याल रखा गया ताकि दिन और तारीख़ की उलझन से बचा जा सके। दूसरी ख़ास बात यह है कि नक्शे पर आप देख रहे हैं कि ये अलास्का और साइबेरिया के अलग दोनों किनारे एक दूसरे से करीब नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अमेरिका का हिस्सा है ये अलास्का और ये साइबेरिया का हिस्सा है, दोनों आपको बिल्कुल करीब करीब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को आप फ्लैट पेपर पर देखेंगे, कागज़ पर देखेंगे, यहाँ भी देखो आप, ये नक्शा जैसा कि हम कागज़ पर देखते हैं इस तरह का नक्शा नहीं है, ये ग्लोब पर जैसा नक्शा नज़र आता है, इस तरह के नक्शा यहाँ बताया गया है। ये जो है अमेरिका का हिस्सा, अलास्का का हिस्सा है और ये साइबेरिया का हिस्सा है, दोनों करीब करीब हैं। लेकिन ये हिस्सा जो है, दरअसल यहाँ ये हिस्सा इस तरह से नहीं है, बल्कि एक दूसरे के करीब ही है। आप देख लें, यहाँ पर इस हिस्से में आप देख रहे हैं, ये दुनिया का वो नक्शा है कि जो आप कागज़ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कागज़ का नक्शा, जो नक्शे आपके पास होते हैं कागज़ में। यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका का जो हिस्सा इस हिस्से के करीब नज़र आ रहा था यहाँ पर, वो ये है अलास्का का हिस्सा और ये साइबेरिया का हिस्सा। दरअसल ये ग्लोब पर एक दूसरे के करीब हैं, क्योंकि जब आप कागज़ को ऐसा मोड़ेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल ऐसा करीब आ जाएगा। यानी ये हिस्सा है, माफ़ कीजिएगा, ये हिस्सा, ये अलास्का का हिस्सा और ये हिस्सा यानी साइबेरिया का और जापान वगैरह का हिस्सा, ये दोनों आपस में करीब आ जाएंगे। यानी इस हिस्से को जब पीछे की तरफ मोड़ें तो ग्लोब पर बिल्कुल करीब करीब आ जाएंगे। इसलिए इस तरह से फ़र्क पाया गया है मुख्तलिफ जो है हिस्सों में। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, की जा सकती हैं। बात ये चल रही थी कि नक्शे पर अलास्का और साइबेरिया के इलाके दोनों किनारों पर नज़र आते हैं, मगर वो करीब हैं। किस तरह हमने बताया। दूसरी चीज़, मगरिब की तरफ से यानी अमेरिका से जापान की तरफ जाने पर अगर 180 दर्जे ख़त को हम पार करते हैं अमेरिका से जापान की तरफ, यानी ये सिमत, ये अमेरिका का हिस्सा है और ये जापान का हिस्सा है। इस सिमत में अगर हम इस ख़त को पार करते हैं तो अगली तारीख़ और अगला दिन होगा। यानी अगर हमने इस ख़त को पार किया, ख़त को पार करने से पहले यानी 25 दिसंबर दिन इतवार का था, तो इस ख़त को पार करने के बाद जब हम इस हिस्से में पहुंचेंगे तो वहां पर 26 दिसंबर पीर का दिन होगा। इस बात को ख्याल रखें कि मगरिब से मशरिक़ की तरफ जाने पर यानी अमेरिका से जापान की तरफ जब हम जाएंगे तो एक दिन और एक तारीख़ का इजाफ़ा होगा। लेकिन इसके मुखालिफ अगर हम इसके मुखालिफ सिमत में यानी मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाते हैं, यानी हम जापान से अमेरिका की तरफ आते हैं, अगर अब हमारा सफ़र इस सिमत में होगा तो क्या होगा। मशरिक़ की तरफ यानी जापान से अमेरिका की तरफ आने पर 180 दर्जे का ख़त पार करने के बाद गुज़िश्ता दिन और तारीख़ मानी जाएगी। यानी हमने अगर यहाँ से सफ़र शुरू किया था 24 दिसंबर शनिचर का दिन रहा हो, फ़र्ज़ कीजिए
यहाँ पर हम पहुँचे थे तो 24 दिसंबर शनिचर का दिन था, लेकिन जब इस ख़त को पार करके इस हिस्से में हम आएंगे तो बदल जाना चाहिए दिन और तारीख़, यानी इसको हम गुज़िश्ता तारीख़ मानेंगे। यानी अब 25 दिसंबर नहीं आएगा, बल्कि इस ख़त को पार करने के बाद भी हम वही दिन और वही तारीख़ तस्वुर करेंगे। इस तरह से ये ख़ास तौर पर ये हिदायत जो है ज़रूरी है हमें समझना कि किस तरह से हम ख़त तारीख़ पार करते वक्त इस बात का ख़्याल रखेंगे। यानी आप यूँ समझिए कि आपने जब सफ़र किया यहाँ से इस हिस्से में अमेरिका से जापान की तरफ, तो एक दिन और एक तारीख़ आगे बांध ली जाएगी, लेकिन आप जब इसके मुखालिफ सिमत में सफ़र करते हैं और इस ख़त को पार करते हैं तो वही दिन और वही तारीख़ मानी जाएगी। इतनी बात आप ख्याल रखें, इंशाअल्लाह इसको समझने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और रह गई है कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ की अहमियत क्या है, कि किस तरह से हम बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ हमारे लिए क्यों इतनी अहम है। बैनुल अक़वामी हवाई खिदमात, ज़राए नक़्ल हमल, माशी और तिजारती सरगर्मियों में हम आहंगी लाने के लिए यह ख़त बहुत ही अहम है। आज तरक्की याफ्ता दौर में बहुत सारे लोग दुनिया के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, सड़क के रास्तों से, हवाई रास्तों से, खुसूसन तिजारत के लिए और इसी तरह सफारती कामों के लिए और मुख्तलिफ मकासद के लिए सफ़र करते हैं। तो अगर दिन और तारीख़ की उलझन ऐसी ही बरकरार रहती तो उनके लिए समझना बहुत मुश्किल काम था। इसी तरह दुनिया में वक़ूअ पज़ीर होने वाले जदीद और तेज़ तरक्की के लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। आलमी नक़्ल हमल के लिए ख़ुसूसी तौर पर हवाई रास्तों के लिए इस ख़त के बग़ैर हम किसी गलती के, बग़ैर दिन और तारीख़ की गलती के हम उसको दिन और तारीख़ को मुकर्रर कर सकते हैं। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ की वजह से दुनिया भर में आमद रफ़्त का निज़ामुल औक़ात मुनज़्ज़म तौर पर जारी है। यानी बैनुल अक़वामी सतह पर दिन और तारीख़ की उलझन को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ इंटरनेशनल डेडलाइन तय की जाए ताकि उलझन से बचा जा सके। ये अहमियत है इस तारीख़ की। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपने इसको बेहतर तौर